Yasir, first of all, introduce yourself before entering into the snap of geotechnical engineering for your BA RC in सर सर मेरा नाम यासिर इस्लाम खान है. हेलो Yes, yes, go ahead, Yasir. Go ahead. sir, my name is Yasir Islam Khan. I belong to Gorakhpur. I have done my basic schooling from Gorakhpur itself, sir. After that, sir, I've prepared. I've joined Galgotias College of Engineering and Technology for completing my bachelor's in civil engineering. And after that, sir, after completing my bachelor's, I've prepared for GATE examination and along with the BARC examination. I've graduated in 2020 and I've written BARC examination 2 times in 2020 and in 2022. And I'm selected through online BARC online exam test. And I'm here to give the interview, sir. Okay, so Yasir, when is your interview date? Sir, 26th May. 26. सर एक्चुअली 24 से 1 ही तक का है सिविल इंजीनियर्स के लिए बार. ओके, तो मतलब उसके बीच में कभी भी तुम्हारा इंटरव्यू हो सकता है, राइट? नहीं सर, मेरा 26 को है. मेरा हमने स्लॉट 26 को बुक किया सर. ओके, 26 को बुक किया. ठीक है, फाइन. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज परमेबिलिटी? Sir, it is the ability of soil to permit flow through it, or it can also be defined as resistance offered by soil से जो सर फ्रिक्शन या ड्रैग ऑफर होता है सर पानी को, जिसकी वजह से पानी की एनर्जी डिक्रीज होती है while flowing through the soil. सर इसको परमेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये जो परमेबिलिटी होती है सॉइल की किस तरह की प्रॉपर्टी है? सर किस तरह की प्रॉपर्टी है? हाँ, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है? सर सॉइल की डायनामिक प्रॉपर्टी. सर डायनेमिक प्रॉपर्टी. डायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा बता सकते हो? सर डायनामिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच इन्वॉल्व्स फोर्सेस. हेलो सर. यस यस, गो अहेड यासिर. यस सर, डायनामिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी मटेरियल पे फोर्स या मूवमेंट या कोई स्ट्रेस फंक्शन लगने की वजह से होती है, उसको सर डायनामिक प्रॉपर्टी बोलते हैं. और सॉइल में सर परमेबिलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि सॉइल में पोर्स हैं, कनेक्टिंग वॉइड्स हैं, और सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है थ्रू ड्रैग फोर्स, इसलिए सर ये डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. डार्सी लॉ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है? यस सर, डार्सीज लॉ can be defined as the velocity is directly proportional to hydraulic gradient in laminar flow, and it is valid in laminar flow. Okay, ये जो velocity directly proportional to hydraulic gradient है, which one velocity is this? Yes sir, it is the cross sectional velocity. Cross sectional velocity, ठीक है. Yes sir. So through which we can also compute seepage velocity with saturation and porosity. ठीक है, और I क्या होता है? सर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है. सर ये लॉस इन एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ द वाटर कवर्ड इन द सॉइल व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द सॉइल. ओके, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो सॉइल के अंदर हमारा जो लिक्विड है, मान लो वाटर, उसके पास टोटल एनर्जी किस तरह से आप काउंट करोगे? सर टोटल एनर्जी, if we consider zero errors, then total energy is piezometric head and kinetic head. But in soils, in fine grained soils and sand, the velocity in the soil is very less. Like in case of sand, it is 10 to the power minus 3 in order of 10 to the power minus 3 centimeter per second, and in silt and clay it is even more less. And if we square the velocity v square by 2g, it will become negligible. Hence we neglect the kinetic head in the soil and we consider only piezometric head, that is the datum head and the pressure head. आपने यहाँ पे एक टर्म और बोला कि डार्सी लॉ में हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार होता है. यस सर. तो सॉइल में हम कैसे इंश्योर करेंगे हमारा जो फ्लो है लैमिनार है? सर सॉइल में हम इंश्योर करेंगे सॉइल फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर निकाल के, जो कि होता है सर रो वी अपॉन म्यू. Here rho is the density of the water, v is the velocity of the water, d is the diameter of the average size of the particle, upon mu is the dynamic velocity of the
which it should be less than 1 to be considered as a laminar flow, sir. Can you tell me the application why we are studying this permeability? Sir, sir, like many application can be seen in engineering, sir. Like behind the dam, we have to know the permeability of soil because जब सॉइल के नीचे सर जब डैम के नीचे सॉइल में सीपेज होता है सर तो वो अपलिफ्ट क्रिएट करता है, वो नेट इफेक्टिव वेट ऑफ डैम को कम करता है. तो उससे क्या होता है सर, ओवरटर्निंग भी हो सकती है डैम की ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेज ऑफ वाटर. और सर हम इसको अर्दन डैम में भी हमें परमिलिटी ऑफ द सॉइल, जिस सॉइल से हम बना रहे हैं डैम उसकी परमिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए हमें परमिलिटी एनालिसिस करनी पड़ेगी, सॉइल की परमिलिटी जाननी पड़ेगी. और सर everywhere where drainage is a problem, sir, like in case of road, we should know the permeability of the soil in which we are constructing a road. लेकिन डैम में यार हम जो फिल्टर मीडिया डालते हैं उसकी तो हम परमेबिलिटी हाई रखते हैं ना. सर डैम की परमेबिलिटी हाई रखते हैं सर, लेकिन फिल्टर मीडिया को ग्रेडेड बनाते हैं. डैम की परमेबिलिटी नहीं, फिल्टर मीडिया की परमेबिलिटी को हाई रखते हैं ना. सर फिल्टर मीडिया की परमेबिलिटी इसलिए हाई रखते हैं ताकि हम सर एट द डाउन स्ट्रीम साइड अपलिफ्ट कम कर सकें सर, पानी रिलीज कर लें, पानी रिलीज हो जाए और अपलिफ्ट कम हो सके. नहीं तो सर डैम के नीचे जो सॉइल है उसमें पाइपिंग हो सकती है सर. तो हम ग्रेडेड फिल्टर बनाते हैं जिसमें हम डैम का जो फिल्टर होता है सर वो ग्रेडेड होता है, मतलब उसमें छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं सर. हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट का नाम सुने हो? यस सर. हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, हॉरिजॉन्टल कट ऑफ सर, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट. नो सर, आई नेवर हर्ड ऑफ. फ्रेटिक लाइन का नाम सुने हो? यस सर. फ्रेटिक लाइन, फ्रीआर्टिक लाइन, यस सर, इट इज द टॉप मोस्ट लाइन. सर अगर डैम के थ्रू सीपेज हो रहा है सर, डैम के थ्रू सीपेज हो रहा है, अर्दन डैम है अगर उसके थ्रू अगर सीपेज, अर्दन डैम या कंक्रीट डैम है उसके थ्रू सीपेज हो रहा है सर, तो जो टॉप मोस्ट लाइन होती है उस सीपेज फ्लो की टॉप मोस्ट लाइन को सर फ्रीआर्टिक लाइन बोलते हैं. ड्रॉ कर सकते हो? एक मान लो ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लो, उसमें फ्रीटेक लाइन बनाओ. Show it to me. Yes. Okay. Yes. ये आपने डाउनस्ट्रीम एंड पे ये क्या ड्रॉ किया है ये बताएंगे थोड़ा? सर ये फिल्टर मीडिया है सर. ओके फाइन, वेरी गुड. तो याशिर आप कैसे ये इंश्योर कर पाओगे कि जो आपका फ्रेटिक लाइन है, जो आपका फ्लो लाइन है, वो फिल्टर मीडिया में जाएगा, मतलब पानी फिल्टर मीडिया के अंदर एंटर करेगा, कैसे आप ये इंश्योर करोगे? पानी फिल्टर मीडिया के अंदर एंटर करेगा सर. अब आपने फिल्टर मीडिया तो बना दिया, पानी तो अपने वे से मूव करेगा ना, हो सकता है कि पानी फिल्टर मीडिया में जाए ना, तो क्या करोगे? So can I think for 30 seconds? Yeah, go ahead. सर किसी पाइप्स के थ्रू ले जाएंगे या क्या सर कोई फ्लो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? पाइप के थ्रू? यस सर. कैसे लेके जाओगे यार डैम में पाइप के थ्रू? यस सर. अच्छा, ये लिक्विफेक्शन क्या होता है? सर इट इज अ फेनोमेना व्हिच, क्या नाम होता है सर, कोहेजनलेस सॉइल में सर ये फेनोमेना देखा जाता है सर. इसमें सर क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल 0 हो जाता है, क्योंकि सर सीपेज हेड और इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाता है सर, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होने की वजह से तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती है कोहेजनलेस सॉइल के लिए सर, वो 0 हो जाती है सर. ये पोर वाटर प्रेशर ये टोटल स्ट्रेस के बराबर क्यों हो गया? क्या रीजन रहा?
सर क्योंकि सारा वेट जो ऊपर से आ रहा है सर वो पानी ने ले लिया है। और क्विक सैंड कंडीशन दोनों सेम है कि डिफरेंट है? अरे सर सॉरी सर लिक्विफैक्शन डायनेमिक लोडिंग के वक्त होता है सर। लिक्विफैक्शन सर डायनेमिक लोडिंग के वक्त होता है सर, इन लूज सैंड होता है। जब कोई डायनेमिक लोडिंग आती है सर तो लूज सैंड में जो लूज सैंड होती है वो सर डेंस बनने की कोशिश करती है, उसमें वॉइड रेशियो घटने लगता है सर ड्यू टू लोडिंग, और ड्यू टू विच वॉल्यूम डिक्रीजेस सर। इफ इन द लूज सैंड पानी अगर वाटर है सर, तो पानी का, क्योंकि सर कन्फाइनमेंट की वजह से पानी का पोर वाटर प्रेशर बढ़ने लगता है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आने लगता है सर, जिसकी वजह से होता तो सर वही है जो क्विक सैंड कंडीशन में है। क्विक सैंड कंडीशन में होता है सर, उसमें भी इफेक्टिव से जीरो जाता है और पानी सर मड बन जाता है, उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी जीरो हो जाती है क्योंकि उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है सर। लेकिन सर लिक्विफैक्शन और क्विक सैंड कंडीशन होते अलग अलग तरीके से। लिक्विफैक्शन डायनेमिक लोडिंग की वजह से होता है और क्विक सैंड कंडीशन अपवर्ड फ्लो कंडीशन की वजह से होता है, लाइक सर इन डैम in the in the downstream side due to upward flow पाइपिंग होने की सर चांसेस रहते हैं, इसीलिए सर वहां पे भी हम लोग ग्रेडेड फिल्टर लगाते हैं। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है यासिर आपके लिए। यस सर। मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएं। सर किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी का। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस, सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना है सर कि ये बताता है कि कोई भी मटेरियल किसी स्टैंडर्ड मटेरियल से कितना भारी है। और सर इसका यूज हम लोग सर बॉयंसी में करते हैं सर, और इसका यूज हम सेडिमेंटेशन टैंक में करते हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में से सेडिमेंटेशन टैंक जो है सर वो सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी के फेनोमेना ही पे डिजाइन किया जाता है सर। मुझे जियो टेक्निकल के पार्ट से बताओ। मान लो अगर हमें कोई जियो टेक्निकल एक्सपर्ट हायर करना है, सपोज यू आर जियो टेक्निकल एक्सपर्ट, सो आई जस्ट वांट टू नो दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्निफिकेंस फ्रॉम जियो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। सर जियो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, सर स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरह की होती है सर, एक होती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक, दैट आई एम नॉट आस्किंग द टाइप। अच्छा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का नाम सुने हो? यस सर यस यस सर यस सर यस सर यस सर। वहां पे सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का काम बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कोई भी मटेरियल कोई भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, जैसे कि सर ग्रेवल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्ले से ज्यादा होती है सर, क्योंकि इसमें पोरोसिटी कम होती है और ज्यादातर जो स्पेस रहता है सर वो सॉलिड एक्वायर करता है, जिसकी वजह से सर कलेक्टिव जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ग्रेवल की वो ज्यादा होती है। तो सर ग्रेवल में कोई पाइपिंग कंडीशन या कोई सैंड कंडीशन कर मतलब नॉर्मली नहीं होता है सर। तो ये जी मटेरियल का जी ज्यादा होने से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर फायदा हो रहा है सर। सर वो डिपेंड करता है सर, अगर हम डैम की बात करेंगे सर, अगर हमने ग्रेवल लगा दिया नीचे, ग्रेवल के ऊपर डैम बना दिया, तो सर जितना भी हम पानी स्टोर करेंगे वो ड्यू टू हाई परमेबिलिटी ऑफ ग्रेवल वो फ्लो कर जाएगा सर डाउनस्ट्रीम कंडीशन पे। तो हमें कोई जो पोटेंशियल हेड ऑफ वाटर से जो भी हमें काम लेना था सर इरिगेशन डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो नहीं ले पाएंगे सर। तो स्टोन तो हम यूज करते हैं ना अपस्ट्रीम साइड पे, जो हम स्टोन पिचिंग करते हैं जिसको हम रिप्रैप बोलते हैं, तो हम बड़े बड़े बोल्डर भी लगाते हैं यार। ये सब बड़े बड़े बोल्डर भी लगाते हैं सर, जो ग्रेडेड सर बड़े बड़े बोल्डर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सर पाइपिंग की सबसे ज्यादा पाइपिंग की प्रॉब्लम वहीं पे हो सकती है सर, क्योंकि वहां पे अपलिफ्ट कंडीशन अपवर्ड फ्लो कंडीशन बनता है सर। तो सर हम पूरा डैम का नीचे का मटेरियल सॉइल क्ले या सिल्ट से बनाते हैं, जो भी अवेलेबल सॉइल रहती है उस पर बनाते हैं सर। लेकिन क्योंकि सर वहां पे एट द डाउनस्ट्रीम कंडीशन वहां पे अपलिफ्ट की प्रॉब्लम रहती है सर, अपलिफ्ट कह रहे हैं तो पाइपिंग की प्रॉब्लम होती है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन होता है, इसलिए सर ग्रेडेड फिल्टर में हम बड़े बोल्डर्स भी लगाते हैं ताकि पानी स्केप आउट हो सके सर, वहां पे इरोजन ना हो जाए सर सॉइल। ओके ओके ओके, सो यासिर आई थिंक राइट नाउ आई कैन प्रोवाइड फीडबैक टू यू। यस सर। यस यासिर। यस सर। सो परमेबिलिटी, आपसे परमेबिलिटी के बारे में पूछा, द थिंग यू टोल्ड मी दैट इज फाइन, बट कहीं ना कहीं आप एक चीज मिस कर गए और बाद में आपने उसका जिक्र किया, दैट इज इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। यस सर यस सर यस सर यस सर। फाइन, अगर सॉइल के अंदर वॉइड्स तो प्रेजेंट है, अगर वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो सॉइल अपने में से इजिली वाटर को अलाउ
नहीं नहीं करती करता पास सर। होने के लिए, ठीक है। यस सर। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। इंजीनियरिंग, ओके सर, ओके सर, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, these are the engineering property of the soil. यस सर, ये तो ओके सर, डायनेमिक प्रॉपर्टी दैट यू टोल्ड टू मी, सो आई जस्ट वांट टू नो कि डायनेमिक प्रॉपर्टी किस तरह से होती है। ओके सर। Darcy law, that is fine. So cross sectional velocity you told I is hydraulic gradient, laminar flow, that is again okay. Application. So what I ask about the application of this permeability. यस सर। तो कुछ कुछ चीजें आप ऑन द ट्रैक रहे, सही था। मतलब इसमें यस आपको और भी आप चीजें एक्सप्लेन कर सकते थे। सो यस सर। जैसे हम अर्दन डैम की बात करते हैं, तो हमारे पास जब भी डैम बनता है वो एक जोन्ड इम्बैंकमेंट होती है। मतलब जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसे हम कोर बोलते हैं, वो इम्परवियस सॉइल से बनता है ऑलमोस्ट। सो जैसे हमारे यस पास सर। क्ले हो गया, यस सर। उसको यस हम सर। सॉल्ट वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम क्ले पिक्चर में आता है। उसके यस बाहर सर। वाला जो सॉइल होगा वो थोड़ा अलग क्वालिटी का होगा, मटेरियल अलग होगा हल्का सा, उसके बाहर वाला जो एक और मटेरियल होगा वो अलग होगा। तो इन शॉर्ट हमने जोन्ड इम्बैंकमेंट बनाया हुआ है। तो जब भी यस सर। वाटर फ्लो करता है, दैट्स व्हाई आई लिंक्ड इट विद द फ्रेटिक लाइन। तो जैसे जैसे सॉइल वेरी करती है, सॉइल वेरी करेगी तो परमेबिलिटी वैल्यू वेरी करेगी, और जैसे परमेबिलिटी वैल्यू वेरी करती है तो जियो टेक्निकल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लो लाइंस होती हैं या जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं, दीज आर काइंड ऑफ द स्मूथ कर्व्स। यस अगर सर। स्मूथ कर्व्स होंगी तो जैसे ही परमेबिलिटी चेंज होती है, तो ये जो फ्लो लाइन होगी ये हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यस सर। जैसे एक रे आपका मान लो रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो जहां पे भी वो रे स्ट्राइक करते हैं तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका नॉर्मल के तरफ जाएगी रे, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बैंड करेगी। इट विल डिपेंड अपॉन रे रेयर से डेंसर में जा रही है या रे आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। यस सर। सेम यहाँ पे भी हो रहा है डैम के केस में भी। सर तो तो मतलब सर जो फेरियाटिक लाइन में वाटर फ्लो कर रहा है वो इसी तरह से हम उसको उसका पाथ डिसाइड करते हैं। यस, ऐसे निकालते हैं। इसलिए जो हमारा फिल्टर मीडिया होना चाहिए ना, हम उसकी बहुत ज्यादा परमेबिलिटी वैल्यू नहीं ले सकते। अगर बहुत ज्यादा परमेबिलिटी हम ले लेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो हो सकता है कि पानी तुम्हारा उस फिल्टर मीडिया में एंट्री ना करके उसके पैरेलल फ्लो करना शुरू कर दे, तो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता है। इसलिए ग्रेडेड मटेरियल पिक्चर में है। ओके सर, ओके सर, दैट्स व्हाई ग्रेडेड मटेरियल पिक्चर में, दैट्स बेसिकली आई वांट टू नो। ओके सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप चीज की तरफ पहुंच रहे थे, तो यू हैव आइडिया बेसिक। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों में और देखना है अभी। ओके तो सर। इसके साथ फ्लो नेट को भी एक बार स्टडी करना है। लिक्विफेक्शन और थोड़ा क्विक सैंड कंडीशन में आप कंफ्यूज हो गए यार। तो लिक्विफैक्शन सर, हाँ सर, लेकिन बाद में सर याद आ गया था वो थोड़ा सा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या पर्पस है, तो आई थिंक जो आप बता नहीं पाए थे व्हेन आई गिव यू हिंट कि आप क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताएं क्या होता है, सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। यस और इवन यू मस्ट नो दिस वन फार्मूला, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यस यस क्या यासिर आप गामा डी निकाल सकते हो? यस सर, हाँ गामा डी कैसे निकाल सकते। कैसे निकाल पाओगे? गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपन 1 + ई सर। नहीं, ये तो फॉर्मूला है, गामा डी कैसे निकालोगे प्रैक्टिकली? सर प्रैक्टिकली सर सॉइल को ओवन ड्राई करेंगे, ओके, और ओवन ड्राई करके सॉइल उसका मास निकल जाएगा सर, हमें मास पता चल जाएगा और उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे सर। नहीं, ये गलत है। देखो हम क्या करते हैं, नाम सुने होंगे, जैसे बल्क डेंसिटी निकालते हैं ना, या बल्क ये यूनिट सर वेट बल्क निकालते हैं उस साइड, डेंसिटी। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है या कोर कटर मेथड है। तो ये तो हम गामा बल्क निकाल लिए उससे। अब उसी सॉइल का हमने मॉइस्चर कंटेंट निकालिए विद द हेल्प ऑफ रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जानते हैं, या सैंड बाथ मेथड है। अगर मान लो आप ग्राउंड पे हो और ओवन की फैसिलिटी नहीं है, तो आप ये मेथड यूज करते हो। फिर आपने फॉर्मूला यूज कर लिया गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा कि गामा डी हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, गामा यस डी आप निकाल लिए प्रैक्टिकली। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको पता है, स्पेसिफिक सर। ग्रेविटी ऑफ मटेरियल आपको गिवन है, तो आप यहाँ से वाइड रेशियो भी निकालते हो। यस सर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता होगा तो आप क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के साथ साथ वाइड रेशियो भी निकाल रहे हो, तो आप ये चीजें ऐड कर सकते हो आंसर में। ओके सर, ओके सर, ठीक है, यस सर, ओके सर। तो एक बार फिर से थोड़ा सा आप चीजों को क्लियर कीजिए यासिर। ऑल्दो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और आपको अपने कंसेप्ट में क्लियरिटी लेके आनी है। ओके सर, फाइन, ओके तो सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर, नो सर। आपका इंटरव्यू तो ये सर 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 फाउंडेशन, अगर हम सॉइल मैकेनिक्स वहाँ लिखेंगे तो फाउंडेशन मतलब वो फाउंडेशन से सॉइल क्वेश्चन पूछेंगे। दे कैन आस्क यस। फाउंडेशन का बेसिक करके चले जाना, डी फाउंडेशन में मत जाना। जैसे आइसोलेटेड फाउंडेशन है उसका क्या मतलब है, राफ फाउंडेशन है क्या मतलब है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वॉल के नीचे जो फाउंडेशन या फुटिंग होती है उसे क्या बोलते हो। तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी शैलो फाउंडेशन, जो मेरा एंड बीरिंग एक्शन होता है। यस सर। कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फाउंडेशन फुटिंग में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सी चीजें। यस सर, यस सर, ओके सर। बीआरसी में क्या है ना, वो मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे एंड दे विल पुट यू इन द डेप्थ ऑफ द ओशन। धीरे धीरे वो लेके जाएंगे आपको।
Yes, sir. है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना वाइसली आंसर रिपोर्ट कर रहे हो, दैट विल हेल्प यू। Okay, sir.